Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to start chapter 5 or lesson 5 in your English literature book. Chapter 5 in your English literature book is about the topic Alice in Wonderland. In lesson 5, the topic is here Alice in Wonderland. So students, let's open page number 24 in your English literature book and start read with me. So students, this is page number 24 in your English literature book. Now see on the top of the page, there is chapter 5 and the topic is Alice in Wonderland. Now start read. You have read the story of Alice in Wonderland in class 6 and 7. अब क्लास 6 एंड क्लास 7 में ये स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड के बारे में पढ़े हो. रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स. सो यू हैव टू रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स. शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट्स. You have to share one of your dreams with your classmates. Did you hear how the Queen of Hearts made the tarts? आप सुने हो क्या Queen of Hearts कैसे tarts बनाए थे? And can you tell what became of them? And can you tell what became of them? और आप बोल सकते हो कि उसका हुआ क्या था? आप बोल सकते हो उसका क्या हुआ था? The song tells you about it. The song tells you about it. The Queen of Hearts, she made some tarts all on a summer day. The Knave of Hearts, he stole the tarts. ये सॉन्ग ये बोलते हैं कि क्वीन ऑफ हर्ट्स एक समर डे में टर्ट्स बनाए थे और एक नेव और एक सर्वेंट ऑफ हर्ट्स उनका बनाया हुआ वही टर्ट्स को चोरी किए थे. ओके ये सॉन्ग इसके बारे में बोल रहे हैं कि द क्वीन ऑफ हर्ट्स कुछ टर्ट्स बनाए थे और ये समर का दिन था और नेव ऑफ हर्ट्स या सर्वेंट ऑफ हर्ट्स उनका या क्वीन का बनाया हुआ टर्ट्स को चोरी किए थे. Why was Alice called as a witness? Why was Alice called as a witness? एलिस को एक विटनेस क्यों बोला जाता है? एलिस को एक विटनेस क्यों बोला जाता है? And took them clean away. Just because there was a little song about the knave. They had taken him as a prisoner. So, इसके बारे में थोड़ा क्लियरली बोला गया है. ठीक है. There was a little song about the knave. Means वही नेव के बारे में, वही सर्वेंट के बारे में एक लिटिल सॉन्ग था. ओके और उन लोग उस सर्वेंट को एज अ प्रिजनर लेके गए थे. मीन्स सर्वेंट को एज अ प्रिजनर उन लोग लेके गए थे क्योंकि वही सर्वेंट क्वीन का बनाए हुआ टर्ट्स को चोरी किए थे. इसीलिए दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट्स. उन लोग उस सर्वेंट के रिस्ट पर चेन लगाए थे. मीन्स चेन से बांध दिए थे.
and brought him before the king of hearts. और king of hearts के पास उस नेब को लेके आए थे. So that there might be a regular trial. So that there might be a regular trial. The king looked very grand with a big crown on the top of his wig. Okay? किंग को बहुत ही ग्रैंड दिख रहा था क्योंकि उनके सर के ऊपर एक बिग क्राउन लगा हुआ था. But he had to wear them both. But he had to wear them both so that people might know he was a judge as well as a king. किंग को ये दोनों थिंग्स पहनना था क्योंकि लोगों को पता चले कि वो किंग एक किंग के साथ साथ एक जज भी है. The queen looked cross for she had taken trouble to make the tarts and the bad knave stole them away. क्वीन को बहुत ही क्रॉस दिख रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रैवल करके ये टर्ट्स बनाए थे और वो एक बैड नेव वही टर्ट्स को चोरी किए थे, है ना. क्वीन को बहुत ही क्रॉस दिख रहा था क्योंकि बहुत ट्रैवल करके बहुत हार्ड वर्क करके वो क्वीन ये टर्ट्स बनाए थे और वही टर्ट्स को नेव ने सर्वेंट ने चोरी किए थे. The white rabbit stood near the king. White rabbit किंग के पास खड़ा था. Read out the song. सॉन्ग को पढ़ रहा था, बोल रहा था. To tell everybody what a bad knave he was. सबको ये बोलने के लिए कि ये नेव ये सर्वेंट कितना बैड है, कितना बुरा है. He was means the servant, the knave was very bad. Okay. And to decide whether he was guilty or not guilty. और ये डिसाइड करना था कि वो नेव वो सर्वेंट गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है. सो वाइट रैबिट किंग के पास खड़ा था. वो सॉन्ग को बोल रहा था सबको ये समझाने के लिए, ये बोलने के लिए कि वो नेव वो सर्वेंट कितना बुरा है और ये डिसाइड करना है अभी कि वो सर्वेंट गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है. Alice was sitting close to the jury box and she was called as a witness. A person who has seen the prisoner do whatever he is accused of or knows something that is important in a trial. Alice was sitting close to the jury box. Alice jury box के पास बैठे थे. Okay? And she was called as a witness. उनको बुलाया गया था as a witness, है ना. Witness का मतलब क्या है? एक पर्सन जो कि अपने आँखों से देखे हैं, अपने कानों से सुने हैं कि जो एक्यूज्ड है, जो प्रिजनर है, वो क्या क्या किए हैं जिसके लिए उनको प्रिजनर बनाया गया है, जिसके लिए उनको ब्लेम किया गया है ना. और ये ट्रायल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो एलिस एक ज्यूरी बॉक्स में
एक ज्यूरी बॉक्स के पास बैठे थे। उनको बुलाया गया था एज विटनेस, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, अपने कानों से सुने थे कि वो प्रिजनर क्या क्या किए थे, जिसके लिए उनको इधर किंग के सामने जांच करने के लिए बुलाया गया है। और एक ट्रायल में ये विटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी टू दिस पोर्शन. In the next class we will study the next part of this chapter.